मेंबर्स जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज इस वक्त जुड़े हुए हैं, राइट. Firstly, I would like you all to get introduced to these distinguished set of panelists that we have today. सबसे पहले I would like to mention about Manish Patodekar sir. Manish sir has a rich experience of over 22 years. उनको देख के आपको कभी लगेगा नहीं कि उन्हें इतना सीनियर एक्सपीरियंस है, बट yes, he has been tutoring for the last 22 years and he has trained thousands of students, and guided them in their preparation. He is also the author of two very famous books on logical reasoning, mental ability. Right? Manish sir. Sir, you can unmute 1 minute. Yeah. Very warm welcome to everybody present over here. Fine, like there are 39 participants over here. So half the battle by these participants has already been won. Fine. Since they have shown their interest in becoming an IAS officer. Fine. So my friends, should we really start on a very serious note? The thing is, without wasting our time, since we have time constraints, and most probably you must be having hundreds of questions cropping up in your mind. So let us start verbatim as such. Fine. So सबसे पहली चीज जो है, so trust me, each and every student in the country, fine, once in his lifetime dreams about becoming an IAS officer. बचपन में like बोला जाता है कि what you want to be in life. So many a times parents they themselves decide that they want their child to be an IAS officer. और धीरे 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 इतना इम्प्रिंट हो जाता है, even students want to be IAS officers. Now the very first thing is that why one should prefer IAS as a job as such, why one should prefer it as a career option. So I can just go on giving a number of points, but before that, first of all, let me just introduce you with the syllabus and the nature of the examination as such. Fine. As I already told you, it is a dream of every student to be an IAS officer once in his lifetime. But again, one has to again think that the competition is very tough. Even doctors or IITians who have cleared their IIT exams, after they complete their course, even they want to be IAS officers. So you are battling with the highest intellectual people in the country as such. Fine. Now I assume, since it is been your goal, you have decided that IAS should be a goal. So the very first thing is that the examination is conducted into how many parts, my friends? It is conducted into 3 parts. The very first level is called the prelims as such, and prelims is nothing but a qualifying exam. There are 2 papers of 200 marks each, and I am telling you again that these questions do have negative marks, but the marks of these prelims do not anyway influence your final outcome as such. Fine. Okay, if Hindi English mix if possible, yeah, obviously I'll do that, sir. So that is level 1. Then once you qualify the prelims, आप prelims qualify कर लेते हो, then you move down to ultimately the mains वाला exam, मुख्य परीक्षा, mains exam. And mains exam में you have to give 9 papers as such, out of which 2 papers belong to languages, and again they are just scrutiny type wala papers. And after that you have to go for 7 more papers, and the last stage is the interview wala stage, जिसमें आप साक्षात्कार देते हो, like you go on for giving an interview as such. Fine. So ultimately the question arises, why should one go for an IAS wala job? The very first point, Pranav Gade, first of all, let me complete and then we come down to your questions, my friend. Fine. The very first thing is that it's a very, very prestigious job. देखो आज की जो सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन जो प्रिविलेंट है पूरे कंट्री में या तो पूरे वर्ल्ड में, इन इंडिया द मोस्ट ब्यूटीफुल जॉब इज डन बाय आवर सिविल सर्वेंट्स. आप औरंगाबाद की बात ले लीजिए, look at the work which has been put up by the Mahanagarpalika Ayukt over here, Mr. Astitwa Kumar Pandey, or like you can take the work of Mr. Tukaram Munde in Nagpur. So they have made a great impact in controlling the COVID wala situation.
So it's a prestigious job, my friends. Second important thing is that you get enormous respect. You got enormous respect, and respect is a thing which everybody craves for. Respect is a thing which everybody craves for. Obviously, a program does not start if the chief guest, that is the IAS officer, does not come out. Okay, just let me just check out the chat box. Okay, fine. So respect is the most important thing which everybody craves. हर एक को respect चाहिए जिंदगी में, and this is the job which gives you tremendous respect. Then the third thing is the perks which are associated with the job. कि इस job के साथ आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो पहले you will get a very handsome salary, fine, and you get enormous amounts of perks. But सबसे important चीज जो है, you can really make a change in the society. You can really make a change in the society. You can transform the lives of millions people who are living in poverty as such. Fine. तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हो. You can eradicate the social evils in the society. So I can simply put it that the job of the IAS is like a modern day Maharaja. म्हणजे आधुनिक काळातला राजा जसा असतो की ज्याच्या हाताखाली खूप मोठी सेना असती किंवा अधिकाऱ्यांचा ताफा असतो आणि ही कॅन रिअली मेक अ चेंज इन द सोसायटी. सो दॅट यू कॅन डू बाय joining the IAS services. Then the third important thing is that over here in IPS you have a IAS or IPS or civil services, I can say, you have a greater job security as compared to the private sector. It's not very easy to kick out an IAS officer abruptly. Fine. So that gives you security, that gives a sense of feeling that you're doing something for the society as such. And the last and the most important thing, my friends, is that you can be a role model for your next generation. Fine. I can give an examples of n number of IAS officers who are role models. Everybody who is attending this meeting must have heard about Mr. Vishwas Nagre Patil. Fine. He's a young and a very dynamic IPS officer, and people are glued down to his lectures on YouTube. Then you must have heard about Mr. Tukaram Munde. Even he's a very strict officer who had made a great change wherever he was working. Fine. Yes, obviously somebody told me the example is Mr. Ansar Sheikh also. Fine. A student from the Muslim community who cracked down this exam, and obviously this is a great achievement as such. So itne sare points jo hai, so I think they will suffice and they are very important as far as why one should choose an IAS dream as such. Fine. So ultimately things become very, very clear to you as such. And the thing is, in my 22 years of lifespan, there are some questions I have encountered. Some students, मेरी जिंदगी में ऐसे भी कुछ students आए हैं कि भाई जो बनने आए थे भाई पुलिस कांस्टेबल और बाद में बन गए DYSP. Fine. So does it really need brains, or does it really need you to score like a great percentile of marks in 10th standard or 12th standard to be an IAS officer? So absolutely no, my friends. जिंदगी में मैंने ऐसे भी examples देखे हैं. Students who have scored very low in graduation, obviously they have also become IAS officers, and students who had scored great marks in 10th standard, in their 12th standard, could not make it to the IAS. So obviously it ultimately depends on the efforts one puts in. Fine. But here one more thing which you want to understand, one more thing which I would like you to understand is that you will be having a tough competitions from students who have done their MBBS, students who have done their IIT. So obviously students should pour in a lot of efforts, and trust me, this is one of the noblest profession. One can go down and serve the nation like anything as such. Fine. So now I hand it over to Mr. Prem Sagar Lohia again to carry on. Yes, thank you so much, sir, for those words of wisdom. And I'm sure the session is on fire now. है ना? कई सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन भी किए हैं, एंड मनीष सर हैज राइटली पुट इट आउट कि आपको एक रोल मॉडल बनने का मौका मिलेगा, या मॉडर्न डे महाराजा एज ही कॉल्स इट, राइट? सो आई थिंक जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उन फॉर द इंटरेस्ट और फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज न्यू स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस दैट आई विल गिव यू इन केस इन द कोर्स ऑफ द सेशन. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज पूछनी हो,
यू कैन मैसेज मी ऑन दिस अकाउंट, प्रेम लोहिया वाला जो अकाउंट है, यहाँ पर आप आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, एंड इन द एंड वी विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, राइट? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। तो सबसे पहले मनीष सर ने आप लोगों को बता दिया कि व्हाट इज द चार्म अबाउट सिविल सर्विसेज. Now I would like to call upon the next panelist, है ना? He is someone who has cracked CDS examination as well as AFCAT examination number of times. ठीक है? He is someone who has also trained and mentored students like Yash Deshmane and Devang Ashturkar, who are again with us in this panel. अपने इस panel में बैठे हुए हैं, है ना? देवांग ने एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक की है पिछले साल की, एंड यश ने भी उस एनडीए एग्जामिनेशन का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है. So I would like to introduce and the next speaker of the session, that is Tejas Rathi sir. So Tejas sir will tell you what is the charm about defense services. क्योंकि हमारा ये जो सेशन है इसमें हमें सिविल सर्विसेज के बारे में भी जानना है और डिफेंस सर्विसेज के बारे में भी जानना है. तो ओवर टू यू तेजस सर. Thank you, Prem sir. So Jai Hind everyone. My name is Tejas, as sir told you. और आप जब इस वेबिनार में आ चुके हो तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज यू कैन मेक अ क्लियर पिक्चर कि यूपीएससी किस बारे में होता है या फिर डिफेंस सेक्टर में कितना अच्छा करियर आपका बन सकता है. सो प्लीज आप जो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनना. वंस वी आर डन विद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द पैनलिस्ट, आई विल टेल यू अबाउट द डिफेंस सेक्टर, ऑल द अपॉर्चुनिटीज, ऑल द challenges, and how wonderful your life can be if you are an officer in the Indian Armed Forces. So it's a very wonderful career, the one you must consider before opting for any career, and I'll give you every information about it. So I hand over to Prem sir. Once the introduction is done, we'll move forward. Thank you, sir. Thank you, Tejas sir. Again, we have with us again another distinguished expert, that is Mr. Vivek Sakla sir. Vivek sir has been an expert faculty at mathematics, and he is one of those senior faculty members at Gnandi Foundation Center. और इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, गाइड किया है एंड मोटिवेट किया है टू क्रैक देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स. Vivek sir, if you can just say a hi to all of our participants. Yes, hello everyone. Myself Vivek Sakla. Yes. Okay. Vivek sir के अलावा we have another important speaker, another important guest with us, that is Rahul Gundale sir. Rahul sir has an experience of more than 7 years in guiding students, training them to crack bank exams, MPSC exams, UPSC exams. Basically he is a master of quantitative aptitude. तो उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, मेंटोर किया है. तो राहुल सर, if you can say a hi to all our friends. Hello everyone, I am Rahul Gundale. I am aptitude expert. I will answer your all the queries related to aptitude and mental ability. Yes. Okay, sir. Thank you. Perfect. Apart from Rahul sir, we also have with us Devang Ashturkar. Devang has recently qualified for the National Defense Academy. He has qualified the written as well as the interview test. So I would like Devang to say a hi to all our friends. Hello everyone, I am Devang Ashturkar. I have been recommended for NDA 146. Okay, yeah, Devang. And after Devang, we also have another successful student, that is Yash Deshmane. He has also cracked NDA 1 and 2, written examination of NDA 1 and 2. So Yash, if you can say a hi to all our friends. Hello everyone, my name is Yash Deshmane. I have cracked the NDA 146 course written examination. Thank you, sir. Okay, thank you. So these are our experts panelists. अभी आप लोगों ने मनीष सर के बारे में सुना. Let us also look at the title or the motto of our webinar, that is direct preparation after 10th of UPSC, MPSC and NDA. इस सेशन में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं. पहला सवाल जो मनीष सर ने ऑलरेडी बहुत ही एक्सप्लिसिटली और बहुत ही डिटेल में हाईलाइट किया था कि why should a student like you, जिन्होंने अभी 10th एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, why should you make a career in civil services? What is so attractive about it? Manish sir has already spoken about it. The second point that we will be covering in our session is why should a student aspire to make a career in defense services? What is the charm about defense services? ये भी हम इस सेशन में देखेंगे. तीसरा, what is the syllabus? Syllabus क्या है? What is the scheme of examination? Nature of examination क्या है? इसको भी थोड़ा सा हम इन डेप्थ डिटेल वे में एनालिसिस करेंगे. और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा कि
वाई शुड यू प्रिपेयर आफ्टर 10th? 10वीं के बाद ही इसकी तैयारी क्यों शुरू करें, और अगर शुरू करनी है तो कैसे करनी है? दैट इज द गोल्डन क्वेश्चन that we will be trying to answer today. एंड इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन होता है कि यार यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या? तो प्लान बी या बैकअप ऑप्शंस क्या रहेंगे और किस तरह से आप उनको एनकैश कर सकते हो, इसके बारे में भी पढ़ेंगे. बट सबसे पहले लेट मी कॉल अपॉन माय फ्रेंड मिस्टर तेजस राठी टू स्पीक टू यू ऑल on the importance or why you should aspire to make a career in defense services. Over to you, Tejas. Thank you, Prem sir. So once again, hello friends. Just me tell you one thing कि जब आप आपका करियर डिसाइड करते हो ना, anyone, we have certain expectations कि हमारे कुछ expectations है और वो फुलफिल होनी चाहिए. तो जनरल 3-4 एक्सपेक्टेशंस जो होती है that I will tell you. First, do you have the opportunity to work on your personality development? क्या आप आपकी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन कर सकते हो, वीकनेसेस को ओवरकम सकते हो, जो भी आप करियर कर रहे हो उसमें? Do you have all the opportunities to work on your personality development? That is the first question. Second, your social status. क्या लोग आपके रिस्पेक्ट करते हैं? When you go into any function, do you stand apart from the crowd? आपका सोशल स्टेटस कैसा है जब आप बताते हो कि यू बिलोंग टू दिस सर्विस और ये आपका करियर है? तो हाउ डू पीपल लुक एट यू? तो सोशल स्टेटस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. थर्ड, दैट इज द सेटिस्फैक्शन एंड द प्राइड. जो भी आप सर्विस कर रहे हो, इज इट कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन? दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड देन यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी. ऐसा नहीं हो कि आपको लोग आपके पेरेंट्स के वजह से या आपके सिबलिंग्स जो है उनके वजह से जानते हो. You should have your own identity. Another, you should have financial stability. That is again another expectation. अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आप आपके फैमिलीज की बेसिक नीड्स को तो फुलफिल कर ही सकते हो, प्लस यू कैन अफोर्ड सम लग्जरीज और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है काफी अच्छा रहेगा. तो देयर इज वन सेक्टर जहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यस मिलेगा. यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स एंड दैट इज द डिफेंस सेक्टर. सो व्हेन आई से डिफेंस, व्हाट डू आई मीन? That means the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force. These are the 3 services जिनको हम combinedly Indian Armed Forces बोलते हैं. और इनमें करियर यानी you enter these services as an officer. ठीक है? So there are various ways entering these services as an officer. प्रेम सर आपको उसके बारे में बताएंगे. But let me tell you some things related to defense sector first. So it is one of the most respected, disciplined and elite organizations of the world. ठीक है? Not only India, पर पूरी दुनिया में जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का नाम काफी अच्छा है. बिकॉज वी आर समवन हु हेल्प पीपल. हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में रेस्क्यू एंड रिलीफ किया है. वी हैव फॉट वॉर्स एंड ऑल ऑफ देम. सो it's a very elite organization, a very disciplined organization, and to be a part of such organization that really gives you a pride and your own identity. So जो क्वेश्चंस या जो एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बताए थे वो डिफेंस सेक्टर कैसे एड्रेस करता है, आई विल टेल यू. फर्स्ट, जब आप ऑफिसर बोल के आपका सिलेक्शन हो जाता है, यू गो फॉर ट्रेनिंग. करेक्ट? कोई एकेडमी में आप ट्रेनिंग करने को जाओगे एंड देन यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. प्लस आप में कुछ ऐसे क्वालिटीज इम्बाइब करी जाती है जिससे आप लाइफ में एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन आगे भी बन सकते हो. सो सम ऑफ दोज क्वालिटीज आर फास्ट डिसीजन मेकिंग, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑल द करेजियसनेस, टाइम मैनेजमेंट. ठीक है? ये सारी क्वालिटी जो है आप में होनी चाहिए ताकि आप लाइफ में जो है कुछ अचीव कर सको. सेकेंड थिंग, द डिफेंस लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर्स. ठीक है? लाइफ इजी नहीं होता है डिफेंस में. इट्स अ टफ लाइफ, बट देन दे ट्रेन यू अकॉर्डिंगली and the life is full of challenges, and you all know with challenges come opportunities. So in the defense life it will be full of challenges. Then you will make friends in your service. You will make friends who are equal to you as your family, क्योंकि ब्रदरहुड एक काफी अच्छा होता है डिफेंस में. एक सेंस होता है ब्रदरहुड का. पीपल और सोल्जर्स आर रेडी टू डाई फॉर ईच अदर. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड करियर. दे पे यू वेल, वेरी हैंडसमली. आपके लिए काफी पर्क्स होते हैं, फैसिलिटीज होते हैं. सो यू आर वेरी फाइनेंशियली साउंड एंड स्टेबल. सो दिस इज द करियर यू शुड डेफिनेटली कंसिडर वंस बिफोर आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है लाइफ में. जस्ट वंस कंसिडर द यूनिफॉर्म सर्विसेज. ठीक है? दैट इज द आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स.
we need such people right now. ठीक है, defense is one of the most dynamic sectors in India right now, because we all know कि हमारे जो दो neighbors है, that is Pakistan and China, they are rival countries. ठीक है, anytime anything can go wrong and the skirmishes keep happening on the border. So it is the sector which is continuously developing, and in the near future or even in the long term, ये future में जो है काफी ज्यादा scope है. There is very wide scope. The government is also continuously focusing on the defense sector, and this is the sector you should really consider about it. You get all the things, financial stability you हो या फिर खुद की identity हो, opportunities to work on personality development, you will get all these things in the defense sector, and it's a very respected position. बहुत एक respected life होता है, एक atmosphere में आप जाते हो, वहाँ पे training वगैरह करते हो, then your service starts. So it's a very prestigious life, difficult life. ठीक है, it's full of challenges, but then it's a very prestigious life, and you should definitely consider about it before you decide your career. So on that note, I'll stop my talk and I hand it over to the Prem sir. Prem sir. Yes sir. So thank you so much Tejas sir for throwing Okay, some sir. light, है ना. तेजस सर ने आप लोगों को डिफेंस के करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, उनके ब्यूटी के बारे में बताया, उनके चार्म के बारे में बताया. अच्छा, बिफोर इस सेशन को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, कितने स्टूडेंट्स, है ना, आप हैंड रेस करने का फीचर होता है जूम पे, आई एम श्योर आप सबको पता होगा. कितने स्टूडेंट्स हैंड रेस करके बताना सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी या एमपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एक डिजायर रखते हैं कि हमें एक सिविल सर्वेंट बनना है. एक बार क्विक शो ऑफ हैंड्स प्लीज. आप हैंड रेस का फीचर यूज कर सकते हैं. ओके, वेरी गुड. साक्षी, चैतन्य, श्वेता, बहुत अच्छे. अच्छा, ओके, मैं आप लोग के हैंड्स डाउन करता हूँ. एक और बार मुझे बताओ, कितने स्टूडेंट्स डिफेंस सर्विसेज में, है ना, कितने स्टूडेंट्स डिफेंस सर्विसेज के लिए अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या डिफेंस में अपना करियर करना चाहते हैं. ओके, वेरी गुड. श्रेयस, निकिता, क्या बात भाई, बहुत अच्छा, है ना. तो आई एम श्योर आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज का, और क्या इंपॉर्टेंस है या क्या अट्रैक्शन है डिफेंस सर्विसेज का. बट अब मुद्दे की बात, एग्जाम भी तो पास करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा. तो कुछ वक्त के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एग्जाम्स है, चाहे यूपीएससी कह लो या एनडीए कह लो, क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटी है क्या ये कोई कॉमन चीज है आप लोगों से चाहते हैं क्या, वो समझने की भी कोशिश करते हैं. एंड वी विल ऑल्सो लुक इनटू कि भाई एग्जैक्टली सिलेबस वाइज क्या चाहते हैं क्या नहीं. तो हियर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. बोथ यूपीएससी के बारे में भी देखेंगे और डिफेंस एग्जामिनेशन के बारे में भी देखेंगे. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यूपीएससी एग्जामिनेशन की, ऑफ कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है. आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि ये एग्जाम 3 स्टेजेस में होती है. पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, जैसे कि मनीष सर ने भी शुरुआत में बताया. दूसरा स्टेज होता है मेंस का स्टेज, जो कि सब्जेक्टिव होता है, जैसे हम बोर्ड एग्जाम्स के पेपर लिखते हैं उस तरह से. और तीसरा होता है इंटरव्यू, या जिसको मुलाकात भी कहते हैं, राइट. तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये इस फॉर्मेट में क्यों डिजाइंड है और क्या क्या एग्जैक्टली यूपीएससी चाहता है इन तीनों में से. सबसे पहले एग्जाम की अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो ये एक ना आप एलिमिनेशन राउंड समझ सकते हो. एक ऐसा राउंड जहां पर वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को ना फिल्टर आउट कर देते हैं, है ना. तो जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है, उतने सिंसियर नहीं है, उनको वो फिल्टर आउट करने की प्रोसेस है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ये एग्जामिनेशन एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्जामिनेशन होती है. आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल रहेगी. और यहाँ पर 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज का एक पेपर और सीसैट का एक पेपर, जो कि एप्टीट्यूड का पेपर है ना, जैसे राहुल गुंडाले सर ने बताया आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग. तो ये दूसरा पेपर उसका होता है, राइट. तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो यू वुड बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन. आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हो, और यहाँ पर द रियल मैजिक हैपेंस हियर मेंस एग्जामिनेशन में. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपका जो पूरा स्कोर है, यूपीएससी का जो फाइनल स्कोर है जिसपे से आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, 90% ऑफ योर स्कोर्स इज बाय योर मेंस एग्जामिनेशन. 1750
1750 मार्क्स की एग्जाम होती है, 1750 मार्क्स की एग्जाम होती है। डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन अगर कोई स्टूडेंट शुरुआत से करे तो बहुत अच्छे से इसको क्रैक कर सकता है। कौन से पेपर्स होते हैं यहाँ पे? जनरल स्टडीज के पेपर। अब जनरल स्टडीज में क्या क्या कवर होता है? एवरीथिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे यूएसए के साथ कैसे रिलेशन है, हमारे चाइना के साथ कैसे रिलेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, है ना। एसे राइटिंग भी होती है यहाँ पे, ठीक है। एसे राइटिंग का भी एक और पेपर होता है मेंस एग्जामिनेशन में। तो जनरल स्टडीज में जितने भी एक जनरल अवेयरनेस वाली चीजें होती है वो सारी कवर की जाती है। उसके बाद जो दूसरे पेपर्स होते हैं, एक एसे राइटिंग का पेपर होता है जहां पर आपको एसे लिखना होता है। एक बहुत ही फेमस ऑप्शनल पेपर, है ना। ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, देयर आर अ टोटल ऑफ 26 सब्जेक्ट्स, 26 सब्जेक्ट्स है, और आप कोई भी एक सब्जेक्ट को आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। कोई हिस्ट्री को लेता है, कोई ज्योग्राफी को लेता है, कोई पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन को लेता है, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेता है। ऐसे अलग अलग 26 ऑप्शंस आपको यूपीएससी देगा, और उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके लैंग्वेज के पेपर्स, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश मराठी, आप जो चाहो वो ले सकते हो। तो दिस इज योर मेंस एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर आपको टू द कोर, टू द क्रक्स आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए सब्जेक्ट की, अदरवाइज आपका ये एग्जाम निकलेगा नहीं, ठीक है। तो आप जब ऐसी आंसर राइटिंग करके आ जाओगे सुपरफिशियली तो ये एग्जाम निकलेगा नहीं। आपको क्लियर कट आंसर्स लिखने होंगे, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंस एग्जामिनेशन। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट राउंड, दैट इज द इंटरव्यू राउंड। ये राउंड में कई लोगों के पास या फिर मार्केट में एक मिसकंसेप्शन है कि ये राउंड जो है ना वो नॉलेज का राउंड है या आपको कितना पता है उसका राउंड है। नहीं, इंटरव्यू राउंड इज अबाउट योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप खुद के बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। आप मेंटली अलर्ट है, नहीं है, आप में लीडरशिप स्किल्स है क्या, आप में इंटेग्रिटी है क्या, आप प्रामाणिक या ऑनेस्ट हो क्या। क्वेश्चन ही इसी तरह से पूछे जाएंगे। जो पैनल होगा, इट वुड बी अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जिन्हें 20-20, 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस होगा। The experience of interview is again very fulfilling experience. तो यहाँ पर वो आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करते, आपकी पर्सनालिटी से जुड़ने की कोशिश करेंगे वो। और अगर आप में की आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है ना, और आपके पास ये सारी चीजें हैं, इंटेग्रिटी, लीडरशिप, ठीक है, ऑनेस्टी, और यू नीड ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द करंट अफेयर्स। जो भी करंट अफेयर्स की चीजें चल रही है, तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। तो दिस इज द स्कीम और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जिन बच्चों को सिविल सर्विसेज करनी है। अच्छा, एक और कुछ सिमिलैरिटी एक और भी है। अब हम देखते हैं डिफेंस सर्विसेज का क्या प्रोसीजर है या क्या एग्जामिनेशन का उसका है सिस्टम। अगेन नेशनल डिफेंस एकेडमी, इस एकेडमी की जो रिटन टेस्ट होती है वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। यूपीएससी ही रिटन टेस्ट कंडक्ट करता है नेशनल डिफेंस एकेडमी की। ये जो टेस्ट होती है या ये जो एग्जाम होती है, ये 2 स्टेजेस में होती है। पहला होता है रिटन स्टेज और दूसरा होता है इंटरव्यू स्टेज। नाउ रिटन स्टेज एनडीए का, जो आप क्लास 12th के बाद में इस एग्जाम को दे सकते हो, राइट। क्लास 12th के बाद में आप इसको दे सकते हो। साल में 2 बार इनके पेपर्स होते हैं, एनडीए 1, एनडीए 2, एक साल में 2 बार होते हैं, ठीक है। इसके रिटन टेस्ट में 2 पेपर्स आएंगे। पहला है मैथमेटिक्स 300 मार्क्स के लिए। ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग है ही इसमें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मैथमेटिक्स में भी रहेगी और जनरल एबिलिटी टेस्ट में भी रहेगी। ये 600 मार्क्स के लिए आता है। और जनरल एबिलिटी में आपका क्या टेस्ट कर रहे हैं वो? जनरल अवेयरनेस, आपका करंट अफेयर्स, है ना, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इन सब चीजों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नहीं है। दूसरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स उन्होंने यहीं पे कवर कर लिया है, तो यहाँ पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक्स वो आपकी टेस्ट करते हैं। और थर्ड एस्पेक्ट है इंग्लिश। आपका इंग्लिश की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंग्लिश भी रिटन टेस्ट के प्रिपरेशन का, राइट। तो एनडीए की रिटन टेस्ट में मैथ्स और जनरल एबिलिटी इस तरह के 2 पेपर्स होते हैं, एंड यू नीड टू क्वालिफाई दीज पेपर्स। आप अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हो सक्सेसफुली, तो यू वुड बी इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू एट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी जिसको फेमसली बुलाया जाता है। आपने कई सारे स्टोरीज भी सुने होंगे एसएसबी के अराउंड, है ना, कितना इंटरेस्टिंग होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, और कितना मतलब एक वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप ऑफ एक्सपीरियंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। और व्हाट मेक्स दिस इंटरेस्टिंग इज बिकॉज
यहाँ पर जब आप SSB में जाते हो तो दे टेस्ट यू नॉट जस्ट फॉर योर नॉलेज, दे टेस्ट यू नॉलेज वाइज ऑल्सो, आपका थॉट प्रोसेस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जनरल अवेयरनेस जो ओवरऑल है, ठीक है, आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो अभी तेजस सर आपके साथ थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, वो सारी यहाँ पे टेस्ट होती है SSB इंटरव्यू में। अगेन अ वेरी unique and wonderful opportunity experience for students to have. Okay, so this is the rough syllabus of National Defense Academy. Now if we take a moment and try to strike some similarities, अगर हम UPSC एग्जामिनेशन एक तरफ और NDA एग्जामिनेशन एक तरफ या बाकी डिफेंस एग्जामिनेशन CDS AFCAT, इन सब में एक सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करें ना, तो 3 चीजें बाहर निकल के आती है। ये क्या 3 चीजें हैं? ये दोनों ही सर्विसेज, चाहे सिविल सर्विसेज हो या डिफेंस सर्विसेज हो, ये चाहती है कि कैंडिडेट्स में ये 3 एस्पेक्ट्स हो। और ये कौन से गुण हैं? नॉलेज, आप में नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब सब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, कुछ स्किल्स ये आपसे चाहते हैं, ठीक है, ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और तीसरा, आपकी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, राइट, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज डेवलपमेंट, ये दोनों ही एग्जाम या इस तरह की और भी एग्जाम्स आपसे सिर्फ ये 3 चीज चाहती है, आपका नॉलेज डेवलपमेंट, आपका स्किल डेवलपमेंट और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। चलो थोड़ा देखते हैं कि नॉलेज डेवलपमेंट में का मतलब क्या है, या कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं नॉलेज में, नॉलेज डेवलपमेंट में। सब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम जनरल साइंस, जो भी हम जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इसके बारे में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, मोर स्पेसिफिकली इंडिया की हिस्ट्री। सेम आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का आर्ट, इंडिया का कल्चर किस तरह से है। आप अगर एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर बनते हो, जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे किसी फॉरेन कंट्री में, यू नीड टू नो अबाउट इंडियाज कल्चर, यू नीड टू नो अबाउट इंडियाज आर्ट फॉर्म्स, इंडिया की ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस, सोसाइटी, हमारी सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इंटरनेशनल रिलेशन, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स का पेपर, अगेन ये एक रीसेंट इनोवेशन था जो यूपीएससी ने कुछ साल पहले एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होके आए वो काफी एथिकल हो और वो काफी ऑनेस्ट और प्रामाणिक हो, राइट। ऐसे राइटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। तो रफली दीज आर द सब्जेक्ट्स जिनके बारे में, और ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये सब्जेक्ट्स जब हम पढ़ना शुरू करेंगे यूपीएससी का करिकुलम, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है ना। तो ऐसा कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। यूपीएससी इज नॉट एन एग्जाम जहां पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आप सोच सकते हो या नहीं, वो जानना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं नॉलेज डेवलपमेंट में, वो जो यूपीएससी और डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स आपसे चाहती है। दूसरा, हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट में। स्किल डेवलपमेंट की इंडियन गवर्नमेंट और बाकी सब भी जगह पे बहुत बात होती है। तो एग्जैक्टली स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या और कौन सी स्किल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ रिटन भी और वर्बल भी। आपको प्रॉपरली सेंटेंसेस ड्राफ्ट करने आते हैं, नहीं आते हैं, इंग्लिश, मराठी या हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप अपीयर करोगे, अटेम्प्ट करोगे यूपीएससी का एग्जाम, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपकी लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है, आप में डिसीजन मेकिंग स्किल्स है या नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग या मैनेजमेंट स्किल्स आप लोगों में है या नहीं है, नेगोशिएशन स्किल्स, ये और इसी तरह की कुछ और स्किल्स यूपीएससी आप लोगों में ढूंढ रहा है। तीसरा, पर्सनालिटी, है ना। कई बार हम लोग सुनते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, चलो वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं। पर एक अच्छी पर्सनालिटी का मतलब क्या है? एक अच्छी पर्सनालिटी, आपका नजरिया कैसा है जीवन के प्रति, आपका एटीट्यूड, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, क्या आप टीम में सब लोगों को साथ में लेके कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क में आप लोग काम कर सकते हो या नहीं। इंडिविजुअली एज अ पर्सन, अगर आपको ब्राइब ऑफर की जाए, करप्शन ऑफर किया जाए, तो कैन यू से नो टू इट, इंटेग्रिटी आपकी कितनी है। और लास्टली, जैसे कि मनीष सर ने शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां पे आप मिलियंस ऑफ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में और इनको डायरेक्टली सर्व कर सकते हो, राइट। तो आप में कंपैशन या एम्पैथी है या नहीं है। हमने देखा कोविड के सिचुएशन में जितने भी फ्रंट लाइनर्स हैं, आप देखोगे आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, कंटिन्यूअसली दे आर ऑन द मूव एंड दे आर सर्विंग द कंट्री।
राइट? तो आपकी पर्सनैलिटी उस तरह से है या नहीं है, ये 3 चीजें अगर लोगों ने मास्टर कर ली तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग IAS। पहला नॉलेज, दूसरा स्किल और तीसरा पर्सनैलिटी, राइट? अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया सर कि भाई दिस इज द नेचर, या यूपीएससी हमसे ये चाहता है, डिफेंस सर्विसेज हमसे ये चाहती है। लेट अस आस्क क्वेश्चन कि भाई 10th के बाद ही इसे क्यों करना है, व्हाई आफ्टर 10th? ये एग्जामिनेशन का अगर आप क्राइटेरिया पढ़ो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, एमपीएससी का, या सीडीएस एग्जामिनेशन, एफकैट एग्जामिनेशन का, तो ये तो बोलते हैं कि भाई हमें ग्रेजुएशन चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद जो आपकी एग्जाम होने वाली है आज से ही क्यों? ये इसीलिए कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स है अगर आप एक यंग एज में आईएएस ऑफिसर बनते हो। इमेजिन करके देखो, आज आप लोग 15 या 16 इयर्स के होंगे, 16-17 इयर्स के होंगे, और आज की डेट में अगर आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और लेट अस से यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एट द एज ऑफ 21 और एट मैक्स 22, एक यंग एज में आईएएस ऑफिसर बनने के बहुत सारे फायदे हैं। एक यंग एज में इमेजिन आपको एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम, है ना, सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया गया है। द होल डिस्ट्रिक्ट आपको सुपरवाइज करना है अलॉन्ग विथ योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ वेरी यंग एज, द डायनेमिज्म दैट इज इन्वॉल्व्ड हियर, इतना वर्क एक्सपोजर एक कम एज में जब आपको मिलता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आपको एक कम एज में मिलती है, तो उससे क्या होता है ना, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है। और यही जो कि एक यंग एज में आईएएस ऑफिसर बनते हैं या अदर सर्विसेज को क्रैक करते हैं। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स की मैंने बात की, है ना, ये तो मैंने ऐसे कुछ बेनिफिट्स की बात की। एक दो और चीजें अगर आप एनालाइज करो तो वो ये है कि लेटेस्ट से देखा होगा जितनी भी बिग टिकट एग्जामिनेशन है इंडिया की, जैसे कि आईआईटी जेई की आप बात कर लो या नीट एग्जामिनेशन की बात कर लो, अगर आप उनके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करो, उनकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री ऑब्जर्व करो, तो आप एक कॉमन चीज पाओगे कि ये जो टॉपर्स होते हैं आईआईटी के और नीट के, ये वो लोग बहुत कम होते हैं जिन्होंने 10th के बाद में अपनी तैयारी शुरू की आईआईटी और नीट की। कई बार एस्पिरेंट्स 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में ही अपना आईआईटी या नीट का फाउंडेशन शुरू करते हैं। तो अब हिसाब लगा लो, अगर आप 8th या 9th में आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट, 12th को एग्जाम देनी है, तो 4 या तो मेहनत तो हुई ना इसमें। तो बिल्कुल सेम चीज, अगर आपका फाउंडेशन, अगर आपका यूपीएससी के जो पिलर्स है, अगर आपने 4-5 साल बहुत प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कर दिए, है ना, और डेडिकेट कर दिए, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर एट द एज ऑफ 21। अभी किसी ने, जब मनीष सर बात कर रहे थे, कहा और एग्जांपल दिया अंसार शेख सर का। उन्होंने क्या किया, सिंपल प्रिंसिपल, आईआईटी नीट जैसे कोई फैंसी एग्जामिनेशन के पीछे नहीं गए, उनका गोल, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर था, और उन्होंने प्रॉपर अपना 10th के बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, 12th के बाद से ही उन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड लेके ही क्रैक्ड आईएएस एट द एज ऑफ 21, यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो द पॉइंट इज, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप पहले से सोच के इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो, तो डेफिनेटली एक यंग एज में आईएएस बनना बिल्कुल पॉसिबल है। एक और स्टेटिस्टिक है मेरे पास, ऑन एन एवरेज अगर आप देखो कि जो एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, यूजुअली उनको जो सक्सेस मिलता है वो तीसरे अटेम्प्ट में मिलता है। द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इन 3rd अटेम्प्ट। हिसाब लगा के देखना, अगर कोई प्रिपरेशन शुरू करता है, 1 साल की प्रिपरेशन, फिर 1 साल की प्रोसेस, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट, और तीसरे अटेम्प्ट में उसको सक्सेस मिल रहा है, तो अगेन 3 से 4 साल का जो लर्निंग कर्व है ना, उससे आपको निकलना ही पड़ेगा। तो वो 3 से 4 साल ग्रेजुएशन के बाद देने से अच्छा, अगर आप अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो ये एक बहुत ही टर्न रहेगा आप लोगों की लाइफ में। एक और बेनिफिट है इस चीज का, एंड दिस बेनिफिट वेरी लेस पीपल आर अवेयर ऑफ इट। कई बार अब हमने देखा है कि हायर एजुकेशन, है ना, वी ऑल हैव द चार्म टू गेट एजुकेटेड और फ्रॉम द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इंडिया के IIMs हो गए, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी। इफ यू आर अ सिविल सर्वेंट, अगर आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हो एट अ वेरी यंग एज, और अगर आपको मास्टर्स डिग्री करनी है IIM से कह लो, या किसी और भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से करना है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके हायर एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, ना कैट एग्जामिनेशन, ना GRE एग्जामिनेशन,
आप डायरेक्टली, इफ यू आर एन ऑफिसर, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर योर हायर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर योर एजुकेशन. ये भी एक एडवांटेज एक यंग एज में IAS ऑफिसर बनने का होता है. एंड लास्टली, ड्यूरिंग द होल कोर्स डिस्कशन है ना विद काबरा सर, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस मुझे काबरा सर ने एक्सप्लेन की. काबरा सर हु इज आवर डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उन्होंने ये शेयर किया कि भाई आप अगर ऑब्जर्व करो सोसाइटी में, तो एज ऑफ सेटलमेंट का मतलब आपने आपकी ग्रेजुएशन की 21-22 साल की उम्र तक आपने अगर ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद बिकॉज द मार्केट हैज बीन सो डायनामिक कि कोई ग्रेजुएशन करके रुकता नहीं है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा. तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप जॉब पे लगते हो 2-3 साल. तो ऐसा करते करते जो एज ऑफ सेटलमेंट, एवरेज एज ऑफ सेटलमेंट अगर आप देखो एक सिटी के युवा की, एक सिटी के यूथ की, वो हो जाती है 26 से 27 या 28. अराउंड 27 to 28 ईयर्स इज द एवरेज एज ऑफ सेटलमेंट. इतना लेट अगर हम सेटल होंगे लाइफ में, या इतना लेट मतलब शादी एंड ऑल सबके प्रोस्पेक्टिव भी ये करेंगे, तो उसके बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ कंपेयर दिस सिनेरियो टू अ सिनेरियो जहां पर आप 21 या 22 साल की उम्र में आप ऑफिसर बन गए. आप 3-4 साल प्रॉपर 100% डेडिकेशन के साथ आपकी सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हो, 100% दे सकते हो. एंड एट द एज ऑफ 25-26 यू आर इन अ पोजिशन कि जहां पे आपने आपके करियर में एक अचीवमेंट हासिल कर लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुकी है. नाउ यू कैन गेट मैरिड एंड स्टार्ट अ फैमिली. ये भी एक एडवांटेज है कि जब आप अगर जल्दी स्टार्ट करते हो तो, राइट. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आप सब लोगों को ये इश्यूज जो है, जो मैंने आपको डिस्कस किए कि क्या बेनिफिट्स है अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करने के, वो आप लोगों को समझ में आ चुके हो. नाउ एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि भाई सर ये तो समझ में आ गया कि जल्दी स्टार्ट करना है, अब करे तो करे कैसे. तो हाउ टू स्टार्ट आफ्टर 10th के बाद आप कैसे आपकी प्रिपरेशन इंश्योर कर सकते हो जिसमें आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चलती रहे, आप एग्जाम्स को भी क्रैक करो, और आपके बैकअप ऑप्शंस भी वक्त मतलब टाइम टू टाइम बनते रहने चाहिए, है ना, राइट. नाउ हाउ टू स्टार्ट आफ्टर 10th. सबसे पहले ये जो प्रिपरेशन है या ये जो कोर्स मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज अ 5-year कोर्स जो कि आप 10th के बाद में डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, राइट. इट्स अ 5-year कोर्स राइट 10th स्टैंडर्ड. और जब आप 11th 12th में, दिस इज ब्रेक डाउन, है ना, दिस कोर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts. फर्स्ट पार्ट इज द 2-year फाउंडेशन कोर्स. एक मिनट, नेट इशू. आई टर्न ऑफ द वीडियो. सर अब मेरा आवाज आ रहा है क्या? विवेक अब सर? आवाज आ रहा है सर. अब आवाज आ रहा है ना, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू. तो ये जो 2 साल कोर्स है, इस फाउंडेशन कोर्स में आप 11th एंड 12th में आप साइंस की फैकल्टी चूज कर सकते हो, साइंस की स्ट्रीम ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो और आर्ट्स भी ले सकते हो, राइट. अच्छा, अब साइंस में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर PCB ले या PCMB ले, राइट. ओके, तो भाई अगर आप साइंस लेते हो तो फर्स्ट एडवांटेज साइंस लेने का ये है कि आपके पास बैकअप ऑप्शन ओपन अप हो जाते हैं. अगर आप साइंस लेते हैं तो बैकअप ऑप्शंस काफी ज्यादा ओपन अप हो जाते हैं, राइट. और उसमें भी अगर आप हैं
तो क्या है ना कि जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है या फिर जो आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, इवन इन जनरल अगर आप साइंस लेते हैं तो आपका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो भी काफी अच्छा डेवलप हो जाता है। ठीक, तो अगर आप पीसीएम या पीसीबी या पीसीएम भी लेते हैं तो आप यू कैन कंटिन्यू विद प्रिपरेशन। पीसीएम भी कई लोगों को लगता है कि सर बायोलॉजी भी लगेगा यूपीएससी में, तो पीसीएम भी ले ले क्या हम? ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आप देखोगे कि जो लेवल है बायोलॉजी का, नॉट 11th-12th लेवल का बायोलॉजी, तो आप अगर बायोलॉजी पीसीएम भी नहीं भी लोगे और सिर्फ पीसीएम भी आपने ले लिया तो भी सफिशिएंट है। या अगर आपको लगता है कि सर मुझे मैथ्स उतना पसंद नहीं है, मैं सिर्फ पीसीबी ले लूं क्या? चलेगा, आप पीसीएम भी ले लो, पीसीबी ले लो, और हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेशन रहेगा उसमें बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है फॉर डिफेंस सर्विसेज एंड यूपीएससी, वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी का तय है कि भाई हमें साइंस नहीं लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो बिल्कुल आप उसी से भी कंटिन्यू कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन। इनफैक्ट हमारी जो पिछली बैच है उसमें वी हैव स्टूडेंट्स जो कि साइंस की भी यूपीएससी का फाउंडेशन कर रहे हैं, कॉमर्स करते वक्त भी यूपीएससी का फाउंडेशन कर रहे हैं, और आर्ट्स करते वक्त भी यूपीएससी का फाउंडेशन कर रहे हैं। राइट, तो 11th-12th में आपकी रेगुलर प्रिपरेशन, या तो आप साइंस कह लो, या तो कॉमर्स कह लो, या आर्ट्स की कह लो, ये प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रहेगी। राइट, इसके साथ साथ आप लोगों का एक सोशल का फाउंडेशन बनाया जाएगा फ्रॉम 6th to 12th एनसीईआरटीज। तो जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है से आप लोगों का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का एक फाउंडेशन बनाया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस यू विल बी ट्रेन्ड इन इंग्लिश, है ना। 1 मिनट, आई थिंक किसी कोई स्टूडेंट्स के, तो प्लीज आप अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। या थैंक यू। इंग्लिश, आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे होती रहेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स के अलावा एक बहुत ही खास एलिमेंट जो मैंने बताया था ना, पर्सनालिटी और स्किल को डेवलप करना, तो वो डेवलप करने के हिसाब से अपने पास बहुत सारी एक्टिविटीज रनिंग रहेगी इस बैच में, जैसे कि न्यूज़पेपर डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो यूनिलैटरल नहीं रहेगा, मल्टीलैटरल, सब लोग डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर, है ना, उस पर एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ग्रुप डिस्कशंस रहेंगे, डिबेट्स रहेंगे, बुक रीडिंग सर्कल्स रहेंगे, राइट। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज रहेगी जिसके थ्रू आप आपका स्किल वाला पार्ट है या पर्सनालिटी वाला पार्ट है उसको भी डेवलप करते चलोगे, क्योंकि स्किल या पर्सनालिटी एक ऐसी चीजें हैं जो कि बुक पढ़ के आप डेवलप नहीं कर सकते, राइट। तो ये रहेगा आपका 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आपकी साइंस की प्रिपरेशन, कॉमर्स प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ आपका यूपीएससी का फाउंडेशन बनता रहेगा। अच्छा, अब लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर 2 साल के बाद में अगर हमें कुछ स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन चाहिए तो है क्या, या एग्जिट ऑप्शन चाहिए तो है क्या? बिल्कुल है। 12th के बाद में आप लोगों के सामने क्या एग्जिट ऑप्शंस निकल के आते हैं? पहला, आप डिफेंस सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं, एनडीए की एग्जामिनेशन आप लिखिए, है ना, नेशनल डिफेंस सर्विसेज का जो आपका एकेडमी का जो एग्जाम रहेगा उसके लिए आप अपीयर कर सकते हैं, राइट। सेकेंड, आप अगर चाहते हो कि सर मुझे यूपीएससी तो करना है बट फिर भी एक थोड़ा सा सेफर साइड मुझे इंजीनियरिंग का बैकअप ऑप्शन चाहिए, तो डेफिनेटली जो आप साइंस के कोर्सेज में यहाँ पे बैठोगे तो सीईटी की जो प्रिपरेशन है, महाराष्ट्र के जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस है और जो अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है, उसकी तैयारी भी आपकी इस कोर्स के साथ में हो जाएगी, एंड यू कैन गेट अ सीट इनटू वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस इन इंजीनियरिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आपका डेवलप होता है। अगेन, कई सारे स्टूडेंट्स को अगर लॉ में करियर करना है, तो एक क्लैट एग्जामिनेशन भी ऐसी एग्जामिनेशन है जो आप देके कर सकते हो उसकी प्रिपरेशन। अगर आप लोगों को क्लैट के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए तो हमारा जो 7:30 से 9 PM में एक जो कॉमर्स का वेबिनार होने वाला है, वहां पर क्लैट एग्जामिनेशन और आईपीएम इसके बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन है। बिफोर दिस मीटिंग एंड्स मैं आपको उसकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड भी दे दूंगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इन केस किसी को क्लैट एग्जामिनेशन या एक जो IIM इंदौर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है IPM, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। तो क्लैट एग्जामिनेशन है, IPM, तो IPM एग्जामिनेशन एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, BBA और MBA IIM से कर लो। IIM तो बहुत फेमस है अपने प्लेसमेंट्स के लिए, अपने करिकुलम और अपने नॉलेज के लिए। अगर आपको IIM इंदौर या IIM रोहतक से BBA प्लस MBA का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो एक एग्जाम होती है IP मैट। तो मोर डिटेल्स ऑन दिस इन द कॉमर्स सेक्शन,
तो आई वुड शेयर द मीटिंग डिटेल्स ऑफ दैट एज वेल इन द एंड। और अगर आप भी हो कि नहीं सर हमें तो यूपीएससी करना है, हमें तो मतलब जाके सिविल सर्विसेज ही क्रैक करनी है, तो आप सिंपल बीएससी, बीबीए, बीकॉम या बीए इन एग्जाम्स की मतलब इन ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए आप आपका एडमिशन ले। द ऑब्जेक्टिव इज, या हमारा मकसद क्या है कि भाई बीएससी, बीबीए, बीकॉम और बीए इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेने से आप लोगों के पास टाइम अवेलेबल बहुत रहेगा। यू वुड हैव सफिशिएंट टाइम, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोर्सेज में आपको नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोर्सेज बहुत ही रिगरस कोर्सेज हैं, यहाँ पर आपको अटेंडेंस, प्रोजेक्ट्स, सबमिशंस, इन सब चीजों में से टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्टूडेंट्स क्रैक नहीं करते हैं, बस पॉइंट इज यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप एक बहुत अच्छा ऑल इंडिया रैंक लेके आओ और ग्रेजुएशन के आपके 3 साल में आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपका एडवांस कोर्स के लिए प्रिपेयर करने में के लिए। और एडवांस कोर्स में जैसे कि मैंने मेंस के सारे टॉपिक्स बताए, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, मैं इसके भी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, है ना। एक और फीचर इंपॉर्टेंट रहेगा इस प्रोग्राम का, दैट इज द अर्न एंड लर्न फीचर या अर्न एंड लर्न स्कीम। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार ये अर्न एंड लर्न स्कीम यहाँ पे बीच में कैसे आ गया। तो यस, आप लोगों को जो लग रहा है कि कैन वी अर्न वाइल लर्निंग, क्या हम पढ़ते पढ़ते कमा सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल आप कमा सकते हो, बट ये जो कमाई है ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आपको फील करवाने के लिए है ना, और कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज आप लोगों में बिल्ड करने के लिए है। तो ये जो 3 साल का आपका एडवांस कोर्स होगा यूपीएससी का, आपको मॉर्निंग में या फिर कोई सेशन में आपके 3 से 4 घंटे यूपीएससी के लेक्चर्स चलेंगे एडवांस कोर्स के हिसाब से, एंड आफ्टर दैट, है ना, आफ्टर दैट यू वुड बी एक्सपेक्टेड टेक पार्ट विद अस इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, है ना। दैट द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू टीच दैट थिंग। अगर आपको कोई चीज सीखना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वो चीज किसी को सिखाओ, राइट। तो वो इंश्योर करने के लिए आपने यूपीएससी के सेशंस में पढ़ा, जो भी आपकी लर्निंग चल रही है, आपको वही लर्निंग आपके जूनियर्स के साथ शेयर करनी है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है। इससे कि जो आपने पढ़ा है उसको आप एक्सप्रेस कर पाओगे, उसको आप पढ़ा पाओगे, एंड एट द सेम टाइम आपका पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका स्टेज करेज, ये सब बहुत डेवलप होगा, ठीक है। और इस चीज का आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, राइट। रिमेंबर, ये स्टाइपेंड इज नॉट फॉर यू मतलब टू अर्न, इट इज फॉर यू टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। आपको जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का वो आने के लिए ये रखा गया है, राइट। तो दिस इज द वे यू कैन डेफिनेटली अचीव योर गोल, जहां पर आप 10th के बाद में ही 2 साल का फाउंडेशन 12th का विद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, और उसके बाद का डेडिकेटेड एडवांस कोर्स जहां पर आपका ग्रेजुएशन भी चलता रहेगा, आपको एक स्टाइपेंड मिलता रहेगा, आप पढ़ाई भी करते रहोगे और पढ़ाते भी रहोगे। वन ऑफ द यूनिक कोर्सेज, मतलब इस तरह का कोर्स इंडिया में कहीं पे नहीं है, राइट। तो अब आफ्टर द एंड ऑफ दिस कोर्स, मतलब ये 5 साल के बाद यू आर एट 21, व्हाट इज द टारगेट, व्हाट आर द टारगेट एग्जामिनेशंस इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे सामने कौन सी एग्जामिनेशंस आती है? सबसे पहली एग्जामिनेशन जिसकी अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, राइट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम भी आप दे सकते हो। तो इंडिया में जितने नेशनल पार्क्स, नेशनल वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट सेंचुरीज है ना, ऑफिशियल्स होते हैं, उनके लिए जो एग्जाम होती है ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके अलावा एक और एग्जामिनेशन होती है यूपीएससी की ईपीएफओ एग्जामिनेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की एग्जामिनेशन। अगेन एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटर आप करोगे, है ना, प्रॉपर क्लास 1 ऑफिसर का जॉब है। उसके अलावा एमपीएससी एग्जामिनेशन, राइट, एमपीएससी के बारे में महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन है। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, इंडियन गवर्नमेंट में जो सेकेंडरी पोजीशंस की एग्जाम होती है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, है ना, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। रेलवेज की एग्जामिनेशन जो होती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एनटीपीसी एग्जामिनेशन, आप इसके लिए भी एलिजिबल रहोगे। तो ये सारी गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट। कुछ डिफेंस सर्विसेज, अगर आपको डिफेंस में करियर करना है तो यूपीएससी का सीएपीएफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए, देन डीएस, एफकैट, है ना, देन नेवी। तो ये सारे आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए भी आप एग्जाम्स
अपीयर कर सकते हो, राइट, डिफेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सेक्टर है ना, इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स होती है ना, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो ऑफिसर लाइक पोस्ट होती है जैसे LIC में की, ठीक है, ये सब एग्जाम्स भी आप दे सकते हो। एंड एंड में बैंकिंग एग्जाम्स तो है, से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम्स, IBPS, SBI PO, राइट। मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैसे राहुल गुंडाले सर ऑलरेडी उन्होंने ये सब एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन किया ही है, राइट, बैंकिंग एग्जामिनेशन, UPSC MPSC का एप्टीट्यूड, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस, और इसके अलावा, ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अलावा टीचिंग का करियर, ठीक है, टीचिंग का करियर बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, एक बहुत ही रिवॉर्डिंग, सेटिस्फाइंग और बहुत ही एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करियर जो बन के आता है वो टीचिंग का करियर आता है। आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स इफ यू वांट टू परस्यू दैट, आप टीचिंग के करियर में भी जा सकते हो। आपने BSc किया है, आप BSc के बाद MSc कर लो, PhD मतलब रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हो। तो ये आपके करियर ऑप्शंस निकल के आते हैं। आपको लगता है कि सर आफ्टर 21 मुझे और सीखना है, आई वांट टू डू माय मास्टर्स, तो डेफिनेटली आप कैट एग्जामिनेशन के थ्रू MBA को क्रैक करने का सोच सकते हो, क्लैट एग्जामिनेशन के थ्रू लॉ में अपना करियर बना सकते हो। तो प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। पर इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा जो बैकअप ऑप्शन है उसके बारे में भी हमने क्यों डिस्कस किया, क्यों, इसीलिए नहीं कि वी हैव द फियर ऑफ फेलिंग, हमारे पास वी हैव द फियर ऑफ फेलिंग, इसलिए हमने बैकअप ऑप्शंस नहीं डिस्कस किया, बट इसलिए डिस्कस किया है ऑप्शन अपना सिक्योर्ड है ना, तो हम फियरलेसली हमारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो अभी हमारा फर्स्ट ऑप्शन है या प्लान, मतलब जो अपना फर्स्ट टारगेट है, उसके लिए अपन 100% कमिटमेंट के साथ जुड़ सकते हैं अगर अपने बैकअप ऑप्शन निश्चिंत है तो। ओके, सो विद दिस आई थिंक आप लोगों को नेचर एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या रिक्वायरमेंट्स है UPSC की और कैसे आप तैयारी कर सकते हो इन योर 11th 12th एंड आफ्टर योर 11th 12th ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, आप सब लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होंगी। ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द प्लान B या बैकअप ऑप्शंस, जो आपका प्लान A को और मजबूत बनाएंगे और फियरलेसली आप उस पर काम कर पाओगे, राइट। इसी के साथ मैं आप बुलाना चाहूंगा विवेक सर को, और विवेक सर आपके साथ कुछ और इंटरेस्ट इन प्रिपरेशन शेयर करेंगे। सो विवेक सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू प्रेम सर। सो प्रेम सर ने बताया अपने को, राइट, काफी। सबसे पहले तो मनीष सर ने बताया अपने को कि व्हाई यू शुड गो विद UPSC एग्जाम्स, देन तेजस सर ने बताया व्हाई गो विद इंडियन आर्मी, देन प्रेम सर ने दोनों को क्लब अप करके जो है उनकी इंफॉर्मेशन दी आपको एग्जाम की। तो आई होप कि एनी हाउ आप ऑफिसर तो बनने का सोच ही रहे हो, या तो आप आर्मी के बनोगे या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनोगे, बट यू विल बी देयर, राइट। सो अब ये जब आपको इतनी सब चीजें उन्होंने बताई, पर्सनैलिटी के बारे में बताई, राइट, तो ये सब चीजों को अपन अब समराइज करते हैं कि हाउ हम लोग जो है ये सब एग्जाम में जो है कैसे सक्सेस पा सकते हैं, राइट, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट। तो अब यस, सॉरी एवरीवन, जस्ट नेटवर्क का इशू आ गया था। ओके, सो अभी सबसे पहले जो है हम लोगों ने तीन टीम्स बनाई हैं, राइट। तो पहला टीम स्टूडेंट मतलब आप लोग, सेकेंड टीम मतलब पेरेंट वाला टीम, पेरेंट रहेंगे आपके मॉम एंड डैड, एंड थर्ड टीम DFC जो आपको इस सब के लिए पढ़ाएगा, राइट। ये कोर्स हम आपको गाइडेड काम करवाएंगे। सो ये 3 हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो सबसे पहला टीम जो हो वो आप हो खुद, दैट इज स्टूडेंट, राइट। तो आपको क्या करना है, सो आप लोगों को सिंपली एक ही चीज पे ध्यान देना है कि आप लोगों के क्लास जो है ये जो है डेली बेसिस पे आपके होने चाहिए, राइट। मतलब आपका जो है शेड्यूल जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए। सो अब जब मैं आपको बात करता हूँ कि भाई आप क्लास रोज करना, इसका मतलब क्या कि भाई आप उतने फिट रहने चाहिए। तो आपका सबसे पहला काम है कि फिट रहना, और क्लासेस जो है बिना कोई छुट्टी लिए, बिना कोई लीव लिए जो है आप लोगों ने क्या करना, अटेंड करना। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक सिंपल चीज है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो भाई आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन,
और आपके गुड हैबिट्स मतलब क्या, खाने पे कंट्रोल, हर चीज देख समझ के खाना, राइट। तो ये सब चीजों पे अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका डेली शेड्यूल जो है ये अच्छा हो जाता है एवरीवन। तो आपको ये तीनों चीजों पे ध्यान रखना है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड आपको हैबिट्स जो है आपके अच्छे रखने हैं। मतलब हैबिट्स मतलब क्या, कुछ लोगों को लेट देर रात तक मतलब जागने की आदत होती है, तो ये सब मत करो। थोड़ा प्रॉपर फिक्सेशन कर लो हर चीज का कि भाई मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, फिर एक्सरसाइज करना है, मतलब प्रॉपर, राइट, मतलब शेड्यूल लाइफ जीनी है आपको। ये सबसे पहला काम, क्योंकि ऑफिसर्स लोग शेड्यूल लाइफ जीते हैं एवरीवन। जब आपका एम अगर ऑफिसर बनने का है तो ऑब्वियसली आपको ऑफिसर खुद को ट्रीट करना होगा ना। देन नेक्स्ट है क्लास का कंसंट्रेशन, क्लास का एटीट्यूड। जब आपको हम लोग जो है भाई पढ़ाते हैं तो काफी सारे अपने डिस्ट्रैक्टिंग लोग रहते ही है। क्या है, कितना भी बोला अभी तो सब लोग ऑफिसर बनते नहीं, कुछ लोग ऑफिसर को क्रिएट बनाते रहते हैं। तो वो केस में आप लोग को क्या करना है कि आप लोगों को वहां पे क्या करना है कि भाई अब जैसे कुछ बच्चे रहते हैं इंस्टाग्राम पे जो है चैट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, स्टोरीज पुट करते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे अपने लाइफ का। आप वो सब में मत जाना, क्योंकि आप टीनेजर हो, मुझे मालूम है टीनेज लाइफ में ये सब गलतियां होती है, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि अपन 11th 12th में सब गलती करें, क्योंकि अगर किसी को बनना है तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो यंग एज में आपको ऑफिसर बनना है तो आपको जो है ये सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा एवरीवन, राइट। नाउ आपको खुद को फोकस रखना पड़ेगा एवरीवन। देन ये पबजी जैसे जो गेम रहते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और उसके हैबिट्स लग जाती है अपने को, राइट। तो ये सब चीजों में जो है आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सबसे आपको बचना है। देन सबसे मेन जो होता है देन होता है भाई उसमें क्लास नोट्स। जब आपको पता है कि आपका जो कोर्स है 11th 12th के बाद अगेन ग्रेजुएशन के बाद आपको जो एग्जाम देनी है ऑफिसर बनने के लिए, तो आप लोगों को जो है आपके जो प्रिपरेशन है, जब आपको 11th 12th से पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स जो है आपके मेंटेन रखने पड़ेंगे ना, ताकि 5 साल तक वो जिंदा रहे, राइट। कुछ लोग तो लिखते ही नहीं, कुछ लोगों का काम रहता क्लास में ध्यान दूंगा मैं, फिर घर पे जाके लिखूंगा। भाई इतना टाइम नहीं है अपने पास कि घर पे जाके लिखने का टाइम पास करे, क्लास में ही टाइम है ना, क्लास में ही अच्छे से ध्यान दो और लिख भी लो अपने हिसाब से, ताकि जो है आपका घर पे टाइम जो है पढ़ने के लिए बचे और आप जो है मैक्सिमम आउटपुट लेवल पे काम कर पाओ, ठीक है। देन क्लास से निकलने के बाद एक आपका एक पॉजिटिव वे में जो बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं भाई कि हम जो है जिसका पॉजिटिविटी ज्यादा रहता है, जो माइंड से जितना स्ट्रांग रहता है, मैं बनूंगा ही आईएएस, मैं बनूंगा ही ऑफिसर, तो वैसे लोग जो है भाई क्या चाहिए, ब्रेन वाइज जो है भाई पॉजिटिव लोग चाहिए। निगेटिव लोगों का जमाना नहीं होता। जो ऑफिसर्स बनते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं उनके लाइफ के प्रति। तो आपको भी पॉजिटिव रहना है। तो वो कैसे डील करोगे, पॉजिटिविटी कैसे लानी है, वो सिंपल है। भाई आज जो सर ने क्लास में लिया सब आ गया, अब ऐसा लग रहा मेरे को कि मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, आज तो बन गया, क्योंकि जो सीखा मुझे समझ में आ गया, मतलब यही तो एग्जाम का सिलेबस है, अब मुझे समझ में आ गया, मतलब मैं क्रैक तो करूंगा ही। तो इस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस अपने खुद के अंदर भरना है एवरीवन, राइट। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे आप में। यस सर, आज सब समझ गया सर, अब जो है भाई आप कुछ भी बोलो कोई टेंशन नहीं है, बन गया मैं ऑफिसर। तो ये इस तरह से आपको खुद को मोटिवेट करना है। देन होमवर्क, आपको डीएफसी जो है हम आपको होमवर्क देंगे, डेली वर्क देंगे। तो ये ऐसा नहीं कि भाई जैसे वो कछुए और खरगोश की कहानी होती है कि स्टार्टिंग में खरगोश जैसा भागने का और बाद में सो जाने का, ऐसा नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली आपको जो है 5 इयर्स का जो कोर्स है इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप लोग का जब तक भी कोर्स है आप लोग को कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी में आपको होमवर्क डेली बेसिस पे रोज का रोज करना है। आज का काम कल करता, कल का परसों करता, ये सब काम करोगे तो फिर ऑफिसर नहीं रहोगे, क्योंकि ये सब लोग बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं। तो ये डिसिप्लिन लाने के तरीके हैं जो हम आपसे चाहते हैं कि आप ये करें, क्योंकि एक अचानक से तो आपका ऑल ऑफ अ सडन जो है पर्सनालिटी तो नहीं बनेगा, आपको बिल्टअप करना होगा। तो दीज आर द वेज कि जिससे आप बिल्टअप कर सकते हो। देन द सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन। भाई पढ़ने के बाद भूलते भी है ना लोग, तो आपने जो है टाइमली रिवीजन करना चाहिए। टाइमली रिवीजन करने के लिए जो है आपने खुद को टाइम देना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके हैबिट्स अच्छे हो। एंड द लास्ट इज दिस टेस्ट एनालिसिस। जब भी आप टेस्ट देते हो तो उसको एनालाइज करो, कौन से पार्ट में आप स्ट्रांग हो, कौन से पार्ट में वीक हो, क्या इसका रीजन है। सिंपल है भाई, जो मुझे आता उस पर मैं कम टाइम दूंगा आगे रिवीजन में, जो नहीं आता उस पर ज्यादा एम्फेसाइज दूंगा, ताकि इन दी एंड वो टॉपिक जो है आपका स्ट्रांग हो जाए एवरीवन, है ना। तो दिस इज हाउ हम लोगों का गेम प्लान है स्टूडेंट के लिए। तो ये स्टूडेंट का रोल है जो उन्होंने करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है पेरेंट का रोल, क्योंकि अब आप सभी को पता है पेरेंट्स कि देखो आप लोग के बच्चे जो है ऑफिसर बनने वाले हैं या 11th 12th उनका करियर का एज है, सभी को समझता है ये इंडियन पेरेंट्स को। तो आपका एक ही काम है, आपको वीक में से जो है आपको जो है पूरे 7 दिन में जो है वीक के आपको 1.5 से 2 घंटे अपने बच्चे के लिए डेडिकेट करने हैं। और डेडिकेशन मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको घुमा फिराने को लेके गए। आपका डेडिकेशन क्या चाहिए आप सुनिए। आप
आपने चेक करने का भाई अपने बच्चा जो है सुबह बराबर उठ रहा क्या, बराबर सो रहा क्या, बराबर खाना पीने पे ध्यान है क्या। ऐसा नहीं होना कि दिन भर ही खाते रहे और वेट बढ़ा ले, क्योंकि वेट भी बढ़ाया तो बाद में जो है भाई फटिकनेस आ जाता है, लेजीनेस आता है अंदर, तो वो सब नहीं चाहिए अपने को। भाई खेल कूद में बराबर ध्यान देता है क्या, फिजिकल मेंटल फिटनेस पे काम कर रहा है क्या, वो सब उसका शेड्यूल चेक करो आप। अटेंडेंस देखो उसका, क्लास में बराबर से जा रहा है क्या, राइट। देन उसको होमवर्क करता है क्या, रिवीजन बराबर हो रहा है क्या। वो टेस्ट एनालिसिस पूछो बच्चों को, कितने मार्क्स मिले बेटा तेरे को, किधर ज्यादा कौन सा पार्ट में मार्क्स गए, किधर तेरे को सब अच्छा आया। इससे समझेगा आपको कि आपके बच्चे जो है खुद भी टेस्ट एनालिसिस करते हैं या नहीं करते, क्योंकि उनको पूछने पे वो आंसर देते हैं, और अगर अटक गए मतलब समझ लो उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि अटकने का काम वही जो लोग करते हैं जिनका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। तो आपको उससे समझेगा कि वो गलती कर रहा है, राइट, और वो गलती कर रहा है तो आप उसको सुधार सकते हो। तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डीएफसी का फीचर है, दैट इज सेल्फ स्टडी चार्ट। डीएफसी का सेल्फ स्टडी चार्ट होता है एवरीवन, जिसमें आप जो है अकाउंटिंग ऑफ स्टडी कर सकते हो। ये डीएफसी का सबसे यूनिक फीचर है जो इंडिया में जो है बाकी कोई क्लास यूज नहीं करते, जो डीएफसी ने खुद ने भी बनाया है। ये हमारा खुद का यूएसपी है जो हम लोग यूज करते हैं हमारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप इनरोल करते हो डीएफसी में, तो आपको ये सेल्फ स्टडी चार्ट जो है, इसको जो है प्रॉपरली जो है आपको ये पेरेंट्स आपको ये फिलअप करना होता है, जिससे आपको रिकॉर्ड कीपिंग में आसानी हो। एंड द लास्ट वी हैव दैट इज ऑफ डीएफसी, राइट। अब डीएफसी का रोल क्या होता है एवरीवन, कि हम लोगों का जो नाम बना, जो हमारे पास 11th 12th में अब बच्चे आने लग गए, सबसे पहला वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज है हमारे पास, वो तो देन वेल प्लान कोर्स भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जिससे डीएफसी का नाम हुआ वो है डीएफसी का पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन। क्योंकि मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, वहां पे क्या होता है भाई, बच्चों को डाउट्स के लिए तो बोल देते हैं, पर 2-3 घंटे बिठा के रखते वेटिंग रूम में, एंड देन उनके डाउट्स बाद में सॉल्व करते। तो वो बच्चे को ही समझ में आता भाई अपने कोई, और डाउट्स भी कैसे 10-15 मिनट में सॉल्व कर देंगे। भाई बच्चा 2-3 घंटे बैठा आपके लिए डाउट्स के लिए, और आप 10-15 मिनट में उसको भेज देते हो, तो दैट्स नॉट गुड फॉर अ स्टूडेंट। फिर वो डीमोरलाइज होता है और बाद में कभी डाउट्स के लिए नहीं आता। तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते बच्चों का टाइम वेस्ट करने का। हम लोग जो है बच्चों के लिए, हम लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं होना बोल के एकदम सिंपल काम किया है। डीएफसी का हेल्पलाइन नंबर होता है, जिसपे बच्चा बस बोल दे कि भाई मुझे डाउट्स है सर, राइट, तो मैसेज कर दे हमें, तो नेक्स्ट डे जो है उसके लिए डाउट सेशन प्लान हो जाता है, और जो उसको टाइम देते हैं हम लोग, उस टाइम पे उसके डाउट सॉल्व होते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता, राइट। और डाउट सेशन भी हमारे 1-to-1 होते हैं। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। देन डिफाइन स्टडी मटेरियल हम लोग आपको देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए जो स्टडी मटेरियल बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, तो वो भी डीएफसी का है जो हम देंगे। देन आपकी प्रैक्टिस होने के बाद आपको खुद को जज करते आना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास यूनिट टेस्ट साइकिल है, हर मंडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है रेगुलर गवर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारा है। हम लोग जो है बच्चों के लिए जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जो बच्चों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। जैसे भाई टेस्ट हुई, उसके मंडे को मार्क्स आ गए, तो हम उसको बताते हैं दोस्त तेरे मार्क्स कम आए, तेरे लिए डाउट सेशन अरेंज करे क्या, तेरे को फिजिक्स के टीचर का टाइम लेके दो क्या। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उनके पास टीचर्स के नंबर डायरेक्टली होते हैं, वो टीचर से बात करके पर्सनल टाइम ले ही लेते हैं, बट कुछ कुछ लोग शाय होते हैं, नहीं बोलते। तो उनके लिए जो है हमारे गवर्नर जो है उतना ही इक्वल रोल प्ले कर देते हैं। हमारे गवर्नर उसको फोन करके बोलेंगे बेटा तेरी टेस्ट थी, तेरे को कम मार्क्स मिले, तो जो है हमारे टीचर्स जो है तेरे को टाइम लेके देता, तू डाउट सॉल्व कर ले डायरेक्टली, पूछने का ही नहीं तेरे को डाउट है क्या, मेरे को लगता तेरा ये सेक्शन वीक है, राइट। खुद एनालाइज करके जो है उसके क्वेश्चंस क्या रॉन्ग हुए, और भाई उसके लिए टाइम डेडिकेट कर देना टीचर का। तो दिस इज हाउ डीएफसी अपना रोल बखूबी निभाता है। तो हम भी चाहते हैं स्टूडेंट अपना रोल निभाए, पेरेंट निभाए, और डीएफसी तो एज यूजुअल रोल निभाएगा ही। अगर ये 3 साइकिल्स, ये तीनों लोगों ने अगर अपने रोल प्रॉपरली निभा लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एवरीवन एक ऑफिसर बनने के से, राइट। तो हम ऑल दी बेस्ट, कि हम चाहते हैं कि आप ऑफिसर बनो, और ये जो प्लान मैंने अभी आपको गेम प्लान बताया, इसका आपको इफेक्टिवली यूज करना है एवरीवन। द डे आप जो है इसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर लोगे, यू विल बी ऑफिसर, राइट। तो थैंक यू प्रेम सर, ओवर टू यू। Okay, yes, thank you so much Vivek sir. And okay, so Vivek sir ने बहुत ही important आपको चीजें एक्सप्लेन की, शेयर की। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, कि भाई जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स थे, है ना, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहे हैं, जो इस पूरी प्रोसेस में से गुजरे हैं, है ना, तो चलिए थोड़ा सा उनसे बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन ऑफ क्रैकिंग एग्जाम्स। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन देवांग अष्टुरकर, राइट। सो देवांग, you can please share your experience with all our friends. Jai Hind everyone. I am Devang Ashturkar and I have been recommended for NDA 146 Air Force branch.
Now, as Manish said in the beginning, every one of us once in a lifetime dream of becoming an IS, and so they also dream of becoming a soldier. So I also had a dream, means in the 8th standard mein I visited NDA, and then I just fell in love with NDA. And फिर उसके बाद मैंने YouTube पे देखा और कुछ ऑफिसर्स से मिला, एंड देन आई गॉट मोटिवेटेड कि मुझे यही करना है. आई वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपका अगर ये ड्रीम है तो आपको उसे मेटिकुलसली नर्चर करना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी करने की जरूरत है, कुछ चीजें करनी पड़ेगी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी. सो दैट यू विल हैव टू डू. एंड देन आई वाज मोटिवेटेड टू जॉइन एनडीए, एंड आई वाज इन डीएफसी सिंस क्लास 8. सो क्लास 8 से क्लास 10th आई वाज इन डीएफसी, एंड देन आई हैड टू मेक अ चॉइस कि अब कहाँ जाना है. But then DFC assured me that I will miss clearing my written examination is their responsibility. And I knew the teachers very well. I had faith in them. So I decided to join DFC. So after I joined DFC in mid 11th standard, means as these batches are planned for you, at our time it wasn't there. But thankfully in mid 11th, we started up with our preparation. And all those things which have been mentioned here have been followed meticulously. So हमारा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हुआ. पहले हमें सिखाया गया, फिर हमारे बहुत सारे टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशंस हुए, एंड देन इन फरवरी या मार्च हमने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए एनडीए के. बट अनफॉर्चुनेटली एनडीए 1 वाला जो एग्जाम था वो हुआ ही नहीं अप्रैल में, एंड देन इट वाज शिफ्टेड टू सितंबर. एंड इन सितंबर आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड टेस्ट वी न्यू कि हमें एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है और क्या हमारा स्ट्रेंथ है, क्या हमारा वीकनेस है. एंड इन दैट सेंस हम दोनों, मैं और यश दोनों भी एग्जाम गए और बहुत ही अच्छे से हमने एग्जाम क्लियर किए एनडीए की. सो दिस वाज अबाउट माय रिटन जर्नी. एंड आफ्टर दैट it comes to interview. So interview, SSB interview is all about your personality test. And one more thing which is apart from your knowledge, your technique, your skills and your personality, one more important thing you must have if you want to become an officer is a very strong value system. क्योंकि आप जब कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसके पीछे आपका वैल्यू सिस्टम होता है. अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके पीछे आपका कोई वैल्यू होगा जो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ाई करने के लिए. सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ एसएसबी की बहुत ही स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम होना चाहिए. एंड देन उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम किया, एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड क्लियर्ड इट. सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट माय जर्नी अबाउट एसएसबी. नाउ आई वुड लाइक टू हैंड इट ओवर टू प्रेम सर. Yes, thank you so much, Devang, for sharing your experience with us, all of us. Thank you, sir. I would also like to call upon Yash Deshmane, and Yash has been a student since a long time, and उसने भी बहुत ही पैशनेटली पढ़ाई की है, वर्क किया है, एफर्ट्स पुट किए हैं. तो उसकी जर्नी भी थोड़ी सी हम उनसे सुनना चाहेंगे, राइट? सो यश, ओवर टू यू. So hello everyone, my name is Yash Deshmane. I'm the student of DFC since class 6, that is from 2014 till 2021, and I don't know how much more it's going to go on. But DFC has helped me a lot in my progress till here. Like the DFC only not teaches you the syllabus, but also give you the life lessons. The thing that I chose the defense career because everyone in their life, once in a life, think that the best way to serve your nation is to join the civil service or to join the Indian Armed Forces. So the same thing, that the crease of uniform drives me toward joining the Indian Armed Forces. So the basic motive to join the Indian Armed Forces was the life the Indian Armed Forces will give me, and the personality and the person the Armed Forces is going to develop in me was the basic thing, basic crux of that. But एक बात होती है कि जो हमारा डेस्टिनेशन है और उसकी जो जर्नी है
लाइक डेस्टिनेशन का एक अलग ही मजा, अलग ही खुशी होती है जब हम गोल अचीव करते हैं, वो तो एक बात होती ही है, उसका सक्सेस, उसका जॉय वो मीन्स इटर्नल है, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन जब हम जर्नी की बात करते हैं, जर्नी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक उसके लिए हमने क्या प्रिपेयर किया, क्या चीज़ें थी जो हमें करनी पड़ी, क्या चीज़ें हमें छोड़नी पड़ी, जैसे कि देवांग ने बताया, इट वाज एब्सोल्युटली राइट। लाइक हमें ये जो जर्नी थी, लाइक हमने प्रिपेयर किया NDA 1 and 2 2020, दैट इज, बट फर्स्ट हुई नहीं और सितंबर में हमारा अटेम्प्ट था उसके लिए। लेकिन सितंबर में अटेम्प्ट के टाइम पे हमने जो मेहनत की, हमने जो देखा कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, हमें कैसे कैसे करना है, लाइक स्टडी मटेरियल ये सब प्रोवाइड होता गया DFC की तरफ से, हमारा भी स्टडी मटेरियल था। फिर हर एक को पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट जो पढ़ने का मेथड है प्रॉपर, वो हमें DFC से गाइडेंस मिला। और जो इन्वॉल्वमेंट हमें करती जानी है टाइम के साथ, लाइक हमें क्या क्या डेवलप करना है, हमारी पर्सनालिटी में क्या क्या ग्रोथ होनी चाहिए। और इसी समय, लाइक फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर द रिटर्न टिल द SSB, द प्रोसीजर वाज सो स्मूथ एंड सो वेल्दी दैट हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक अस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 8, 9, 10 हम न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। लाइक न्यूज़पेपर एक बार देखना है, क्या हेडलाइंस है क्या नहीं। लेकिन 11th में आने के बाद जब हमने NDA के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो न्यूज़ एनालिसिस कैसे करना है, लाइक न्यूज़ में क्या क्रक्स होता है, क्या उसके बेसिक पॉइंट्स होते हैं, ये स्टडी करना, लाइक उसके नोट्स बनाना, फिर वो न्यूज़ के डेप्थ तक जाना, इस पर हम क्या सोच सकते हैं, क्या ऐसा किया तो ये ठीक होगा, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें हमें DFC ने बहुत हेल्प की। फिर हम बात करते हैं लाइक लर्निंग स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की। लाइक जो DFC में ग्रुप डिस्कशंस वगैरह हुए, हमने SSB के टाइम पे जो प्रोसीजर थी SSB की, उसके ऊपर काफ़ी वर्क किया। मतलब जो हमारे टास्क होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन, टीचर्स के साथ डिस्कशन, क्या करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू इन्वॉल्व इन आवर पर्सनालिटी, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए। ये बात बहुत मैंने कि हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। हर एक बात की तरफ हम जितनी पॉजिटिव तरीके से देखेंगे उतना हमारा अप्रोच सही होगा, हम उसकी तरफ और डाइवर्ट होंगे। लाइक हमारा पाथ सही है तो फिर हम सब सही कर रहे हैं, ये बात होती है। फिर DFC की जो मेथड्स है, टीचर्स ने बहुत हेल्प की। लाइक रिटर्न के टाइम पे टीचर से डाउट सॉल्व करना, प्रैक्टिस के लिए हर टाइम प्रैक्टिस करते समय हर एक बात को याद रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो सिलेबस में है उसे गो थ्रू करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसका अप्रोच हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग का कैसा है वो देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें टीचर्स ने बहुत हेल्प की। फिर अप्रोच की हम बात करें तो लाइफ में भी यही अप्रोच टीचर्स भी बताते हैं। लाइक जो गवर्निंग टीचर्स रहते हैं वो हमसे बात करते हैं कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तुम कैसे कर रहे हो, ये टेस्ट का एनालिसिस किया क्या, इसमें क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। फिर वही हमें मोटिवेट करता है कि अगले टेस्ट में और अच्छा करें। तो ये सब चीज़ें हमें DFC ने एक इन्वॉल्वमेंट में सिखाई और अब तक का जो साथ रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, वो भी आगे भी चलता रहे। थैंक यू सर। Back to your host, guys. Okay, so thank you so much, Yash. Yes. So I'm sure आप सब लोगों ने पूरी जो प्रोसेस है विथ रिस्पेक्ट टू कि एग्जैक्टली द इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस क्या है प्रिपरेशन का, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको प्रिपेयर करते वक्त, ये सारी चीज़ें आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। बट फिर भी आई एम अज्यूमिंग कि आपके मन में अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस आपको स्पेसिफिकली पूछने हैं टीचर्स से। मेरे पास यहाँ पर वी हैव टीचर्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड राहुल गुंडाले सर, मैथमेटिक्स विवेक सर, right? We have Manish sir is also there. Okay, I think he got disconnected. ठीक है, तो I am there. I am also teaching social science. Tejas sir is a colleague, वो भी social science department से ही है। So या फिर आपको यश और देवांग से भी अगर कोई questions पूछने हैं तो feel free, आप लोग hand raise कर सकते हो या आप आपके questions message section में दे सकते हो। But before that एक बहुत ही important चीज, see आप DFC से अभी जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, एजुकेशन या करियर को लेके आपके मन में कोई भी शंका हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मैं आप लोगों के साथ ना एक DFC का हेल्पलाइन नंबर या DFC का जो हेल्पलाइन सिस्टम है उसका नंबर सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, राइट? ये हेल्पलाइन नंबर पे अगर आप SMS करेंगे
आपके करियर रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, आपको 10th के आगे क्या करना है क्या नहीं, अगर कोई भी आपको गाइडेंस रिक्वायर्ड रहेगा, जस्ट फील फ्री, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, है ना, एंड यू वुड हियर अस, हियर बैक फ्रॉम अस, राइट। तो ये नंबर है, मैं आपके स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, तो आप ये नंबर नोट कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, भाई ये तो सब ठीक है, आपने पूरी प्रोसेस बता दी, शुरू कहाँ से करें? तो शुरू अगर आपको करना है, एक अच्छी शुरुआत के लिए मुहूर्त देखा नहीं जाता, एक अच्छी शुरुआत अभी से होती है, राइट। तो कल से ही राइट, इमीडिएटली फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग विथ फ्रेश बैचेस, है ना। फ्रेश बैचेस, आपका जो भी करियर चॉइस होगा, आप सिंपली 9225318727 इस नंबर पे आपका करियर चॉइस मैसेज कर दो, या अभी आपके चैट सेक्शन में एक मैसेज भी आ जाएगा। कल 4:30 PM से अपनी फ्रेश बैचेस शुरू हो रही है ना, जहाँ पर आपके 11th-12th की प्रिपरेशन, साइंस की, है ना, एंड जो भी आपकी स्ट्रीम्स ऑफ इंटरेस्ट होगी उन सबकी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक सेकेंड, यस, आई थिंक आप लोगों को चैट सेक्शन में मैसेज भी आ गया है। और उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई पर्सनल चीजें पूछनी है, तो आप इस पे से भी पूछ सकते हो। और अगर आपको अभी लाइव पूछनी है किसी से कुछ, तो हम लोग हैं अवेलेबल, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड्स और आपको अनम्यूट किया जाएगा। ओके, सो आई थिंक सब लोगों का सब चीजें क्लियर है, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है। बट स्टिल अभी अगर क्वेश्चन नहीं है और ये सेशन होने के बाद कभी भी आपको कोई सवाल आए, कभी भी कोई डिसीजन लेने में आपको हेल्प हो, या करियर रिलेटेड कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, क्या करना है, मैंने आप लोगों को साथ हेल्पलाइन नंबर शेयर किया ही है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हो, हम तक पहुंच सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स बहुत डिटरमाइंड है कि उन्हें करना ही है, तो बिना इंतजार किए आप लोग आपका प्रिपरेशन जरूर शुरू कर दो। आप लोग आपकी प्रिपरेशन के लिए वेट मत करना कि 10th के रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद हम सोचेंगे, नहीं, रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, वो सारी प्रोसीजर होने ही वाली है। बट बिना वेट किए आप आपका जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर दो, राइट। ओके, सो दैट इज फ्रॉम आवर एंड। आई वुड like special thanks to all the distinguished experts which are here, है ना, मनीष सर, विवेक साकला सर, यस, राहुल गुंडा, यस। अच्छा, डेमो, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि उन्हें डेमो करने की इच्छा है, तो बिल्कुल आप डेमो अटेंड कर सकते हैं डीएफसी में। 10 डेज का आप डेमो अटेंड करो, बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी फीस वगैरह, कोई फॉर्मेलिटी पूरी ना करते हुए। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर, आप डायरेक्टली अटेंड करना चाहते हो लेक्चर्स, बिल्कुल आप अटेंड कर सकते हो 10 दिन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, सो I would like to thank all the teachers, respective teachers who are present here, right? So Manish sir, Vivek sir, Tejas Rathi sir, Rahul Gundale sir, and our friends Devang and Yash. है ना? And finally, thank you sir, from team DFC. ये जो हम लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम भी है. So once you join us, you will get to know all of us, right? Okay. So thank you so much. I think we will end this here. यस रुपल सर, आप सर मीटिंग एंड कीजिए रुपल सर।